Hello everyone, this is Sakshi and watching Travel with Sakshi, and I have started this YouTube channel for my travel adventures. So basically, I am a lawyer and I have been practicing since 5 years, and I started my channel when I went on a solo trip to Beer for the first time. I was going solo, and there I met a couple who said that I have inspired them to travel because I was traveling with a selfie stick and I was making a video, and they got inspired and they told me that we feel really nice that you are traveling and making videos solo. So that's when I decided that I should start my travel channel. And then COVID hit and I stopped vlogging, but now I have started vlogging full time. What kind of videos will you find on my channel? Everything related to travel. You will find travel, backpacking, mostly solo trips, and how you can also travel solo and you can save money. The hacks to save money and budget friendly hotels and resorts and stays, and how can you travel places in a budget. I'm going to stay budget friendly places and I'm going to make budget for you guys so that you can also travel on budget, and I'm going to share my itinerary wherever I go, and mostly I'm going to focus on offbeat places जहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, because I want to stay away from the crowd. So that's a bonus because you will find offbeat destinations which you don't find anywhere else. You will get solo travel tips, what all travel gears do you need and what should be there in your travel bag, and everything related to travel basically. So how did I start this solo travel? Because I found a couple on my first solo travel to beer building, and they said I inspired them, and that's when I thought I should start solo traveling. But then COVID hit and I stopped traveling solo, and after that last year I started solo travel again. I went to Rishikesh, which is near Delhi, and it's a really nice solo travel destination. After Rishikesh, I went to Ahmedabad, then Diu Ahmedabad ke paas hi hai, and it's a really nice offbeat place. If you want to go on a beach and you live in North India और आप गोवा नहीं जाना चाहते, तो it's a really nice place. और अहमदाबाद से केवल overnight journey है, and दिल्ली से भी पास में ही है. You go to Ahmedabad and then you go to Diu, and उसके बाद मैं गई थी काफ़ी offbeat place जो कि है अमरकंटक मध्य प्रदेश में. बहुत ही कम लोग को पता है. एंड जबलपुर, आई नो जबलपुर बहुत छोटा लगता है, बट इट्स रियली नाइस एंड इट्स शॉकिंगली रियली प्रिटी. एंड ऐसे ही ऑफबीट प्लेसेस जाने का मेरा मन है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल. और सारा ऑफबीट प्लेसेस आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी अपना ट्रैवल आइटनरी बना सको. So my solo journey has been really amazing. अभी actually 1 year हुआ होगा, but थोड़ी बहुत problems तो आती रहती हैं, because आपको भी लग रहा होगा कि इंडिया में solo travel करना काफ़ी difficult है as a girl, एंड मुझे भी यही लगता था हमेशा. बट ज़्यादातर तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ है. बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प किया है बैग्स के साथ एंड ट्रांसपोर्ट के साथ. एवरीथिंग दे हैव हेल्प मी विथ लोकलाइट्स हैव हेल्प मी इन फाइंडिंग ऑफबीट प्लेसेस. जहाँ पे मैं नई जगह गई हूँ, मैंने हर जगह सरप्राइजिंगली फ्रेंड बनाए हैं. तो मुझे बहुत मज़ा आया नए लोगों से मिलके, वहाँ का ट्रेडिशन, कुजीन, एवरीथिंग ट्राई करके. बट एक तो जगह पे जैसे ड्यू में बहुत सारे लोग बुली कर रहे थे मेरे को. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई वाज मेकिंग वीडियो एंड दे केप्ट ऑन सेइंग ब्लॉगर बहुत डिमीनिंग वे में. सो आई डिडंट लाइक दैट. एंड देन वर्कला में भी एक केस हुआ था कि आई वाज चिलिंग एट द बीच रात में 8-9 बजे के करीब, एंड देन सम ग्रुप केप्ट कमिंग टू मी एंड दे केप्ट ऑन सेइंग कि do you want to talk. I don't know, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों की, नो नहीं ले सकते हैं. But they kept on saying do you want to talk, and I said no, and they kept on saying कि you don't understand, you're lonely, we are lonely, let's go out partying. And I was like, ये क्या बात होती है कुछ भी. And I said no obviously, but then I had to go back because of them, and I was not feeling safe. So sometimes you don't feel safe, so you should carry some kind of weapon like small foldable knife or pepper spray or
like a whistle or something, or you should ask help from people, and you should not hesitate कि अकेले आए हैं तो you cannot ask for help. I have asked for help many times, and you should too. And solo travel does not mean you have to be solo all the time and you're going to be lonely. You can make friends. I have made friends, and you can go with a tour and travel company, you know, and you can meet others also who are traveling solo. And I have tried that also. I went to Spiti with a group. It was amazing, and experience बहुत अच्छा होता है. You can gel up with people. If you don't like to travel solo completely, तो आप travel companies के साथ जा सकते हैं, and that is also a really nice idea and a fun way to interact with people and find nice people. अब वो मेरे friends बन चुके हैं. So solo travel में भी आपको friends मिल सकते हैं, and it depends. Like I am also an introvert, but like if you go with a company, and there you can find friends, you know. And वैसे भी बहुत सारे लोग have come up to me and they have offered help to me, so that's really nice. But you have to you know, be aware of whom you are taking help with. Sometimes they want something in exchange of helping you, so उतना shady लोगों से you have to keep a distance. इतना तो समझ में आ जाता है. You have to like trust your vibe कि कौन सही है कौन नहीं. मेरा मोटिव यही है इस चैनल बनाने का कि आई नीड टू ट्रैवल एंड डिस्कवर प्लेसेस इन इंडिया. तो ज़्यादातर मैं इंडिया को कवर करना चाहती हूँ, जितने भी ऑफ बीट प्लेसेस हैं. अब्रॉड तो रह जाएगा. आई नो इट्स लाइक ऐसा लगता है ये जवानी दीवानी का डायलॉग होता है कि कभी कुछ भी मेहनत कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा. आई फील लाइक दैट, क्योंकि हर दिन आप रील्स देखते हो एंड यू आर लाइक कि ये भी जाना है, ये भी जाना है, बट यू कीप ऑन सेविंग. बट जब भी टाइम मिले निकल जाना चाहिए. आप इंडिया में जाओ, फॉरेन में जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है. ट्रैवल करना चाहिए. ट्रैवल से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो आप कहीं पे भी जाइए, आपको नया एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा. आप गाँव में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा. सो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस लेने हैं, यू नो, एक्सपीरियंस कलेक्ट करने, प्लेसेस कलेक्ट नहीं करनी है. हर जगह के लोगों से मिलना है एंड नई नई चीज़ें सीखनी है. ट्रैवल में आप सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न एंड हेल्प यू ऑल्सो लर्न. बेझिझक होकर ट्रैवल कैसे करते हैं, बिकॉज ट्रैवल में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, बट आपको बहुत सारी सीख मिलेगी, यू नो. तो बहुत सारे लोग ट्रैवल से डरते हैं, बहुत हेक्टिक होता है, आई नो, बट कभी कभी चीज़ें ऐसी कर लेनी चाहिए. बिना प्लान के भी चले जाना चाहिए. मैं बहुत सारी जगह पे बिना प्लान के चली गई हूँ. यू नो, यू हैव टू ट्रस्ट the people over there sometimes, and you have to be impromptu. I want to motivate people कि वो लोग भी जाएं. जब मैं बिना एक हैंड के ट्रैवल कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं. Okay, so what happened to my right hand? So I met with an accident in 3rd standard. तो थोड़ा ट्रांसफार्मर का वायर I touched with my hand. मतलब एक वायर से मैंने टच कर लिया था, छत के ऊपर से जा रहा था वो वायर. सो उससे शॉक लग गया एंड गैंग्रीन का वो था, चांस था. तो पूरी हैंड रिमूव करना पड़ा बिकॉज पॉइजन जो था वो पूरी बॉडी में फैल जाता. सो दैट हैपेंड, बट आई केम बैक वेरी क्विकली. आई थिंक बिकॉज क्योंकि मैं छोटी थी तो मैंने लिखना स्टार्ट करा सब कुछ. विद इन 2 months आई केम बैक टू स्कूल. मैंने गिव अप नहीं करा, स्कूल में भी गिव अप नहीं करा, एंड मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करी. सो यू नो, बट व्हेन यू आर अ किड बहुत जल्दी आप वापस आ जाते हो चीज़ों से. बट देन आई जस्ट फॉरगेट दैट आई थिंक आई एम लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. बट एकदम से यू नो स्टेयर्स आते हैं और लोग रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं कि यू नो शादी कैसे होगी, ये वो, रैंडम चलते हुए मेट्रो में. एंड देन यू फील वियर्ड. तो आप कोई भी डिफरेंटली एबल से मिलो तो आप प्लीज़ यू नो सिंपैथाइज मत करो उनके साथ, एम्पैथाइज करो. अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ डोंट स्टेयर एट देम या कुछ अजीब अजीब क्वेश्चंस मत पूछो, बिकॉज वो भूल चुके होते हैं उनके साथ जो हुआ होता है. एंड व्हेन यू आस्क देम देन दे स्टार्ट फीलिंग वियर्ड. जैसे मैं एकदम नॉर्मल रहती हूँ, आई फील लाइक अ नॉर्मल पर्सन. एंड ट्रैवल के टाइम भी बहुत सारे लोग स्टेयर्स करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ एंड ऑल दैट. ठीक है, आई नो क्यूरियोसिटी है, बट अजीब अजीब क्वेश्चंस तो मत करो कि शादी कैसे होगी एंड ये सब आवाज़ें मत निकालो. यू नो दैट्स लाइक डिग्रेडिंग टू अस कि मतलब वैसे ही प्रॉब्लम है एंड तुम क्यों, मतलब यू आर अ स्ट्रेंजर. नॉर्मल करो ना, मतलब एम्पैथाइज करो. कुछ